Okay. So what will be the about P NRZL? Positive. No return to zero, that means within this interval. या इस interval no बस नहीं वापस zero पे ठीक है नहीं आएगा. Then no return to zero at level. Level encoding means level ऊपर check करनी है. 1 है ऊपर 0 नीचे 1 है ऊपर 0 नीचे जैसे आप करते हो 1 1 1 1. ठीक है? So this is the scheme. अब हमने क्यों बोला था इसको worst case for zeros? देखो worst case for ones, it's more worst for ones and less worst for zeros. क्योंकि zeros में इसको DC component तो नहीं आएगा because all zero will be simply transferred. But वहाँ पे इसको loss of synchronization होगा because there is no clock. ठीक है? When it is best case 1 0 1 0 1 0 is going up and down up and down up and down. So in terms of loss of synchronization it is good. ठीक है? Because it has up and down going on. जो clock information हमारी होती है that is to change the state after the current interval of time है ना and it's changing state so it has the clock information so there is no loss of synchronization but for 1 1 1 1 1 1 there is again loss of synchronization because clock is not there and also there is DC component. What about this part? Is there DC component? There is DC component because it is unipolar. ये हो गया DC component का हद. ठीक है ये तो worst case of DC component. This also has DC component but at one level because over the time period पूरा ठीक है ये on है उसके बाद off है तो DC component हो गया इसका divide by time. यहाँ पे तो over the time period तो पूरा on ही on है ना तो all time it is getting an addition the cumulative effect of DC components. ठीक है so it will be adding up. तो उसी तरीके से हमने बोला the channel is capacitive in nature, so it will add to the thing called baseline band rate. ये simply ऊपर चढ़ेगा अगर ऐसा कुछ हो गया. तो इसका मतलब ये बहुत ही गंदी चीज है. We use simply NRZL for communication. That too UNRZL. Sorry, PUNRZL. अच्छा अब हम बनाएंगे कौन सा वाला? NUNRZL. उसमें आप यहाँ पे 0 रखेंगे यहाँ से -5 दे दो. ठीक है? So 0 के वक्त 0 पे रहेगा 0 के वक्त 0 पे 0 0 पे लेकिन यहाँ से -5 हो जाएगा 1 then 0 -5 and then because 1 will be designated as -5 this is the reverse it will be simply the NOT gate of ऊपर वाला ये मुनासिब है NOT operation. Inversion, not operation, it will be inversion, not will be different. It's inversion. ठीक है ना? क्या चीज़ 0 इसमें सेम रोज़ कुछ का सेकंड वर्ड मीनिंग कि हम बोल सकते हैं मिरर इमेज है इसकी लेकिन मिरर इमेज नॉट मिरर along x axis. अच्छा उसके बाद हमारा क्या था पोलर NRZL. इसके भी दो हिस्से होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव होगा ना नहीं क्योंकि हमारे में पोलर है ऊपर भी जाना नीचे भी जाना क्या पॉजिटिव नेगेटिव होगा ये अकेला ही रहेगा it will be P NRZL. So how it will look like? You will have to designate both the voltage at the higher voltage and the lower voltage. So it will be +5 and -5. No return to 0. It won't anywhere return to 0 level. It will either go to +5 and -5. And it is level encoding means सीधे देखो -5 हो गया 0 0 0 0 इधर उसके बाद 1 उसके बाद 0 उसके बाद 1 उसके बाद 0 then all ones. तो ये बाइपोलर है पोलर बन गया. ये पोलर बन गया. तो कैसे? वाइस दो ही है लेवल्स. इसमें मतलब 0 5 वोल्ट और -5 वोल्ट 0 नहीं है इसमें. ठीक है कोई कंफ्यूजन? So it is simply the PNRZL, the polar no return to 0 level encoding. ठीक है? हाँ. अब इसके बाइपोलर आते हैं. कहते हैं इनके थोड़ा सा टेढ़ा है. Yours which was simple. क्योंकि लड़कियां क्या बहुत सारी चीजें देखते हैं ना
सीधे नहीं देते हैं ना कोई फैसला, पहले पास्ट जरूरी देते हैं, इसीलिए अनदर आई नया आएगा, दैट विल बी समवट लाइक यू, नो रिटर्न टू जीरो, L was level, I means inverse, हाँ I means inverse, no return to zero invert, another I, अगर मैं इसमें दिखाना होगा ना रिटर्न टू जीरो, हाँ ऊपर वाले केस में हम कैसे दिखाएंगे? इस वाले केस में ये तुम वापस ये वापस ये बीच में नहीं बीच में नीचे आएगा, यानी कि ऐसा है ना वन, ये तुम वापस पद पे हाँ, जैसे नीचे वाला है हमने इसको बेस जीरो पे ले आएंगे, हाँ जो ऊपर इधर तो लेके ले रहे हैं ना, ये यूनिपोलर है वो पता है। नहीं, अब मुझे समझ आपका क्वेश्चन क्या है, आपको लग रहा है सर हम तो वापस जीरो की ओर आ रहे हैं, ये तो रिटर्न टू जीरो होना चाहिए, एक्चुअली जो भी रिटर्न टू जीरो स्कीम होती है ना, दैट मींस रिटर्न्स टू जीरो बिटवीन द लेवल, वो वन के टाइम में जीरो यहाँ पे बीच में नीचे आना, समझ गया? पहले जो आपके पास जहाँ पे सिग्नल स्टार्ट होती है ना, वहाँ पे तो ऑब्वियसली आएगा वो जीरो की ओर, बीच में कहीं भी, हाँ जो टाइम पीरियड आपका जो बिट टाइम है ना, उस बिट टाइम के अंदर अगर कभी आ जाए वो बेस पे वापस, उसको हम रिटर्न टू जीरो कहते हैं, वरना तो नॉर्मली इसको आना ही आना है, जो स्टार्ट ऑफ द टाइम एंड एंड ऑफ द टाइम पे इसको आना ही आना है, ठीक है? बीच में अगर आएगा दैट विल बी द रिटर्न टू जीरो लेवल, सो अनदर आई जो होगा नो रिटर्न टू जीरो एंड देन इनवर्ट, इट्स अ डिफरेंशियल एनकोडिंग, ये याद रखना। Why is it a differential equation? Because encoding sorry because it checks two things. कौन सी? एक तो ये चेक करेगा ऊपर क्या आ रहा है अभी वैल्यू ऑफ डेटा, और ये चेक करेगा पुरानी लेवल क्या है, ये चेक्स टू थिंग्स। अब इसका एल्गोरिथम क्या है? It means no return to zero. I means actually invert at once. I का मतलब नहीं invert, मगर ये full क्या है? Invert at once. मीन जब भी आपको ऊपर वन मिलेगा, अब पुरानी लेवल को इन्वर्ट करना, ठीक है? और जब जीरो मिलेगा तो पुरानी लेवल को इन्वर्ट नहीं करना, ऐसी जगह आ गई। So that makes it a differential encoding technique, ठीक है? So what you are checking two things, ऊपर क्या है और पीछे लेवल क्या है। तो आप इसको आने का बोला कि इम्पोर्ट करेगा जब वन आएगा, जब ऊपर वन आएगा, जब वन आएगा तो ये प्रीवियस वाला और मेहनत करो, ग्रेड्स अच्छे लाओ, प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाले हैं, अभी मैकेनिकल की हो रही है, डेटा की उसके बाद हमारी भी होगी, CCPC बहुत हेल्प कर रही है इस चीज़ में मामले में, तो ग्रेड्स अच्छे और वो वहीं से बोला हमें दे दो अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे कौन होंगे जो क्लास में आएंगे। ठीक है? So now we have to make another I. ये हो गया जीरो, जीरो पे क्या करना है? कुछ नहीं। अब लेकिन मुझे नहीं पता है ना पीछे क्या था, सो मुझे खुद से ही कुछ लेना है। लेट अस मुझे पीछे से ऊपर आ रही थी, ऊपर से आ रही थी। सो व्हेन इट इज जीरो आई हैव टू डू नथिंग, आप कुछ नहीं करेंगे, ऐसा समझ? सो उसके बाद जीरो फिर से चलना आगे, जीरो चलना आगे, जीरो चलना आगे, अब वन आ गया ना, यू हैव टू इनवर्ट, ये नीचे जाएगा, फिर से क्या आ गया? जीरो, ये सीधे चलेगा, फिर वन आ गया इनवर्ट, ऊपर चढ़ेगा, जीरो आ गया सीधे चलेगा, वन आ गया इनवर्ट होगा, वन आ गया इनवर्ट होगा, वन आ गया इनवर्ट होगा, वन आ गया इनवर्ट होगा। सर ये प्रीवियस सिग्नल कोई देखना होता है, हाँ लेवल से देखना, हाँ दोनों को, एक तो पीछे से सिग्नल को देख लिया वो कहाँ पहुंची है, और ऊपर से देखना है नेक्स्ट बिट आपके पास क्या है, पीछे वाली लेवल और अभी वाली बिट, ठीक है? सो पुरानी लेवल जैसे यहाँ पे देखते हैं, 0 0 0 पर आ रहा था, पुरानी लेवल ऊपर थी ना, डोंट चेंज, लेट इट गो एज इट इज। अब ऊपर 1 आ रहा है, सो इन्वर्टेड हो जाएगी नीचे, तो एनर्जी में डायरेक्टली आप भूल ही नहीं सकते उस सिग्नल से इशा 1 की निशान, समझ गया? सो इससे इसमें एक और चीज आ जाएगी, दैट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी किस लिहाज से आएगी? बिकॉज
डायरेक्टली अगर आप इसको फॉर एग्जांपल बीच में बॉब आ गया और इसको पकड़ लिया, ठीक है, उसको डिकोड करना है, वो बोलेगा ना ये 1 है, 1 1 1, फिर बोलेगा 0 0 1 1 0 1 0 1 नॉर्मल तरीके से, और इफ यू वुड हैव बीन आंसर एल, ठीक है, बट इट्स नॉट दैट, इट इज 0 0 0 0 1 0 1 0, समझ आया? सो वो पढ़ेगा कुछ और लेकिन असल में था कुछ और, सो इट हैज इनबिल्ट सिक्योरिटी आल्सो इफ इट इज डिफरेंशियल, ठीक है? सो क्या याद रखना है आपको, व्हेनेवर दिस डिफरेंशियल एंड कोडिंग लाइक अनदर, हां देखो जैसे मैं गजल आपको भेज रहा हूँ डेटा कम्युनिकेशन के थ्रू, ये 0 0 0 0 1 0 0 1 1, ठीक है, इसको इसका नाम है 10 बजे हम क्लास हो रही है, ठीक है, अब वो कैसे हमने इनपुट किया है इसको ऐसे, अब आप बीच में अगर आपने हमारी लाइन टैब बॉल है ना, ठीक है, खतरनाक, तो आप नीचे टैब और आप ये सिग्नल सी और पे पकड़िए, ठीक है, और आप इसको डिकोड कर रहे हैं, आपको क्या मिलेगी नीचे वाली सिग्नल, आप इसको जरा डिकोड करें, क्या है, हाँ ये लगती है ना 1 1 1 1 0, वो पता असली सिग्नल है आप, अच्छा वो हम मिल रहे हैं 11 बजे, हमने 10 बजे, हाँ तो इसका मतलब हाँ जब तक ना उसको पता हो, जब तक ना उसको पता होगा कि इट इज बीइंग एनकोडेड इन थ्रू, अब जो कंपनीज एक दूसरे जैसे सिक्योरिटी कंपनीज जो होती है, जो वायरलेस मैसेजिंग होती है, कि बच्चे से लेकिन पानी एल्गोरिथम डेवलप करेंगे, ठीक है, तो दूसरे बंदे को बहुत मुश्किल हो जाती है कि पकड़ना पहले, दे डोंट नो द एल्गोरिथम की तो बात ही नहीं, समझे? सो इट इज बेटर टू हैव डिफरेंशियल एनकोडिंग थ्रू दिस, और ये पुराना भी पता होना चाहिए, अगर ये पता भी ये भी नहीं पता होगा तो ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, लेट अस सपोज वो लेगा इसको 0 और उसको पता है ये एनआर है, ठीक है, तो यहाँ पे बिट चेंज हो गई ना, वो पहली बिट को क्या लेगा 1 फिर 0, तो ये सारी चीजें इसमें बहुत महत्व रखती है, ओके, बट इस एनआर के भी आपके पास होंगे वेरिएंट्स ऑब्वियसली, सो यू विल हैव पी एनआर, यू विल हैव यू एनआर, ठीक है, फिर यू एनआर के होंगे पी यू एनआर एंड एन यू एनआर, शाबाश, तो मुझे टीम बनाएंगे जल्दी से, आपने इनमें से कौन सा बनाया, आपने इनमें से बनाया पी यू एनआर पर, अब आपको बनाना है एन यू एनआर, इट्स नॉट नेसेसरी कि इसको जो चेक करेगा, ये जो अब मैंने सिग्नल बनाई ना वहां पे, इट इज यूनिपोलर नो रिटर्न टू 0 एंड इन्वर्टेड वंस, है ना, अब आपको बनानी है नेगेटिव वाली एन एनआर, वो भी यूनिपोलर एन यू एनआर, फिर आपको बनानी है पोलर वाली, सर इसमें जैसे आपने किया ना, सपोज पहले आपने बोला कि ये बात मतलब यहाँ ये सिग्नल वन करो ना, सपोज सारी चलिए तो सेम आ जाएगी, सपोज कि 1 की कहे यानी हायर लेवल, और जो जब नेगेटिव बना रहे हो तो आपको सपोज करना है कि ये -1 की कहे, -5 हो, सो टेल मी क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं और क्या नहीं है। सबसे पहले हम इसका भी देखेंगे, ये है ना, सो फॉर जीरोस कंटिन्यूअस जीरोस इट इज रिमेनिंग हाई, डिपेंड्स की पहली क्या रही थी, अगर वो 0 रहती तो इसमें 50-50 है कि आपके पास जो बेसलाइन कमांड हो कि नहीं हो, या डीसी कंपोनेंट होगा कि नहीं हो, लेकिन कंटिन्यूअस वंस के लिए इसमें मजा है, देखो है ना। सो इफ यू आर कंटिन्यूअस वंस देयर इज नो प्रॉब्लम, इट इज हैविंग द कुलॉग बिहेवियर, कुलॉग बिहेवियर हो गया कि ना इसमें आपके पास लॉस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी, बट देयर इज डीसी कंपोनेंट, द इनबिल्ट डीसी कंपोनेंट, बट इफ यू मूव टू द व्हिच वन, पोलर एनआंसर, ठीक है।
सो पोलर एनर्जी में डीसी कंपोनेंट यहां से लेकर यहां तक आएगा जब ऑल जीरोस है, whether it is +5 or -5, दोनों both are considered as DC component, positive negative, clamp up or clamp down. Then when it is best case, that is 1 0 1 0, there is no problem, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ठीक है? And when it is continuous ones, you will get a clock type signal without DC component. वो इसमें थोड़ा सा फायदा है as compared to NRZ L. और दूसरा फायदा इसमें जो है that is it is differential encoding, ठीक है? It takes into account both the previous one and this. So सिक्योरिटी के हिसाब से हमने पहले इसको डिस्कस किया, सिंबल रेट बार रेट के हिसाब से NRZ और NRZ I जो दोनों है ये वैसे ही बंदे हैं कि एक बाइट पे एक बंदा चढ़ा हुआ है, because whenever there is a signal change, add one signal change you have one bit, then signal change one bit, signal change one bit, signal change one bit, जी ठीक है? So one signal change for one bit and bit to baud rate ratio is 1. Same goes for NRZ. अब उसके दिमाग में चल रहा है सर यहाँ पे तो कोई सिग्नल चेंज आई नहीं, यहाँ पे 4 बिट्स है. It's not actually like this. It is done on best case. ठीक है? नंबर ऑफ सिग्नल चेंजेस जहाँ पे रियलिटी में होती है हर एक चीज के लिए वहाँ पे हमें टेस्ट करना है. So that is done here. So its best case is here. So यहाँ पे चेक करो, the number of bits are 4 and number of signal changes are 1 2 3 4. ठीक है? So bit rate to baud rate ratio here will be again 1. Then synchronization. So that is still a problem here. Because there won't be always the best cases like 1 1 1 and 0 1 0 1, ठीक है? So जब इसके पास continuously zeros आएंगे, it's losing its synchronization. There is no clock. Then DC component. DC component is a problem in the unipolar part, and that is not a problem in कि वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है when it is all zeros because it's going -5 or +5 continuous. So that the DC component is still a problem. Then we have baseline banding. So क्या यहाँ पे baseline banding हो सकती है? Obviously yes. ठीक है? Because when there will be loss of synchronization or DC component through 0 0 0 0, and if there is capacitive effects, that will simply wander the line. So is there inbuilt error detection? There can be, because it is differential encoding. We can put it. और कैसे? उसको हम आगे कुछ डिस्कस करेंगे. So this is NRZ L and NRZ I and उसके बहुत सारे variants. ठीक है? तो उसके बाद कौन सा था इसमें? No return to zero में? Then we have Manchester and differential Manchester. लेकिन उन पे जाने से पहले we will have to go to RZ. Return to zero. क्योंकि return to zero यहाँ पे जरूरी है. जी? क्या बात है? मेरी 3 क्लासेस हैं. एक घंटा नहीं हुआ. आज के मेरे पास है. सर हमें 2 बजे के बाद और 2 घंटे की क्लास. कौन सी क्लास है? सर हमें फॉलो सर की हम घर जाते हैं. अच्छा गेले सब आई. 2 बजे है. कोई बात नहीं. As you wish.